ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਸਥ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। पूजिए मन तन लाए अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीत में अपने, तन मन होए निहाल जामुर दिखा सामने। सो बहुत बड़े भाव ने संगतां दे जिन्हां नूं सतगुरां दे सोहणे दरबार विच हाज़री भरन दा बहुत सोहना सुभाग समा मिलिया है। इस समागम जो सालाना है समागम धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह दे अवतार दिहाड़े इत्थे सालाना ही समागम इस सत्संग दीवान साजदे ने। सो सतगुरां की बड़ी अपार कृपा बख्शिश है। गुरु जी ने कृपा की है अपने ते। गुरु महाराज सब ते ही कृपा करते हैं। गुरु वेखो चाहे कोई भी है, कोई पुण्य है, कोई पापी तो पापी भी है, कोई राजा भी है, कोई पखारी भी है, पर गुरु सब ते ही कृपा करता है। सब ते मेहर भरिया हाथ रखता गुरु वेखो। पर गुरु
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ। ਯੁੱਗ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ, ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਜਿਹੜੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਰੋਕਣੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਫੇਰ ਨਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੰਠ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਚਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਜਨਮ ਆਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਬਸ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ,
वो सूरमा ही नहीं कर सकता कोई। देखो आत्म जिने सगल वस ताकै जाता सतगुर पूरा। जे अंदर भावना है ना, अंदर गुरु प्रति प्रेम है, प्रेम है भी मेरा गुरु पूरा है, पूरा है, गुरु कृपा करता है, विश्वास भरोसे ते खड़ा ते तां तेरे सारे फौरने खत्म नहीं, फौरने रुक जाते ने, फिर मन के फौरने खत्म हो जाते हैं। फिर पता नहीं गुरु ने किहड़ी चीज़ की बख्शिश करनी है। गुरु फिर ऐसियां दातां जीव नूं बख्शिश कर दिंदा कि उसने कोई जानिया भी नहीं हुंदा, उसनूं पता भी नहीं हुंदा भी मैनूं ये चीज़ प्राप्त हो सकती सी, मैं इस चीज़ दे लायक सी, मैनूं गुरु ने आप ही दात दे दित्ती। वेखो भी नहीं मैं इस चीज़ के लायक नहीं सी, पर गुरु ने मेरी झोली विच दात पा दी, पा दी। वेखो गुरु नानक पातशाह जदों दुनिया तो तारदे सतगुरु नाल मरदाना जी भाई वाला सतगुरु अगे वेख्या शहर आउंदा है। सतगुरु शहर तो करीबन 2 गुरु जी पिछे ही रुक गए। सतगुरु गुरु नानक पातशाह गुरु जी बैठ के जगह वेखी सुहावी, खेत से किसी जिमीदार, सतगुरु उत्थे बैठ गए। मरदाने ने बेनती करी सतगुरु कृपा करो, बहुत दूरों आ रहे हैं आपां, अगे शहर दिसदा है, कृपा करो कुछ छकिया में भुख बहुत लगी है, लियावा छकन वास्ते नाले छकिया में। सतगुरु जी वचन कर लगे कि नहीं मरदानिया तू सानू कीर्तन सुना, कीर्तन सुना, कीर्तन सुनावेगा, आपां उस करतार नूं याद करदे हां, उसनूं फिक्र है अपना, अपने आप भेजेगा किसे। सतगुरां ने वचन करिया, मरदाने ने फिर कुछ समा कीर्तन किया, फिर बेनती करी नहीं जी भुख लगी है कृपा करो। कहने लगा जी आ इत्थे बूटे लगे ने छोलियां दे, ते तुहाडा वचन होवे तां पट के ते ही छक लैंदे आ, छोले ने ते इन्हां नूं सेक दे के जदों नरम हो जाते पोले हो जाएंगे भी ये छक लैंदे आ, फिर आपां। सतगुरु वचन कर लगे मरदानिया खेत तेरा है, तू वाया है, बीजिया है, तू कह लगे नहीं। सतगुरु वचन कर लगे फिर तू किवें छक लेगा। हजे नहीं वचन करते सी, इन्ने टाइम नूं मालक जिमीदार गेड़ा मारदा वो भी सतगुरां दे कोले आ गया। जदों कोले आया मरदाने ने बेनती करी, सतगुरु फिर शहर में जाया तो फिर छकिया। उन्हें जो इन्ना सुनिया ना, वो कह लगा साधु पुरशो तुसी खेत ते शहर में ना जाओ, शहर में ना जाओ। मरदाना कह लगा भी क्यों ना जाइए, कह लगा भी शहर 3 दिन हो गए बंद है, शहर बंद है। जी अपनी विचार है ना, विचार है कि गुरु का वचन मनन दे नाल ते अंदर भावना रखन दे नाल की कुछ प्राप्त हो जाता। गुरु दे नाल जुड़िया समा होया, वो दसदा कह लगा भी 3 दिन हो गए शहर बंद है। शहर का जिहड़ा राजा सी ना, शहर का राजा मर गया, गांव उसके औलाद है नहीं सी कोई, ते गांव हुण राज भाग संभालण वास्ते अगे कोई है नहीं, हुण कोई बैठ नहीं रहा। वजीरां नूं भी कहा, मंत्रियां नूं भी कहा, सब ने, पर कोई मान नहीं रहा। वो कह लगे नहीं असीं कसम खाधी, असीं वजीरी करनी है। वो कहंदे भी असीं मंत्री हाँ, बस असीं राज भाग नहीं संभालना। इस करके 3 दिन हो गए, शहर सारा बंद है, दुकाना व्यापार सब रुकिया हुआ है।
शहर के लोग बड़े तंग ने, इस टाइम बड़े औखे ने। और जिन्हों का व्यापार ही रुक गया, दुकान बंद है, वो कहन लगा भी जे राजा बैठूगा तो फिर व्यापार अगे शुरू होगा राजे के हुक्म के नाल ही। भी इस करके कोई राजा है नहीं तो सब कुछ बंद पिया, लोग तंग ने ते उठ के जा रहे हैं कोई घर विचों। भी हो सकता भी अज तीसरा दिन है ते कोई ना कोई राजा अज शाम तक, हो सकता सवेरे दिन चढ़दे बन जाए, क्यों रौला बहुत पैंदा है। उस जिमीदार ने दसिया, गुरु नानक पातशाह सतगुरु मुस्कुराया, कहन लगे मर्दानिया असीं तां तैनूं पहला ही वचन करदे सी कि तू सानू कीर्तन सुना, आपां उस अकाल पुरख नूं याद करदे हां। मर्दाने ने सत वचन कह के फिर तू ही निरंकार नाल कीर्तन फिर शुरू कर दिता। कीर्तन होया, शाम हो रही है, वो जिमीदार वो चला गया घरे, वापस घरे चला गया। इन्ने टाइम नूं उसका पुत्र आ गया, जिमीदार पुत्र आ गया। उसने देखा भी 3 साधु बैठे समय होंदे सन, उस टाइम परोपकार रिक का ही परोपकार करता सी, भला सोचता सी रिक ऐसे जानी समय टाइम होंदे सन। उन्हें मन च सोचिया भी साधु बैठे ने, भी इन्हां दा छकण दा वास्ते कुछ जे घरे हुण वापस गए टाइम बहुत लग जाना, बहुत दूर शहर है, तो किते उठ के ना चले जाना, भी कुछ होर भी है नहीं खाण नूं, इन्हां नूं की देइए। हुण मन च सोचा भी खेत है, छोले बीजे हुए ने, क्यों ना आपां यही इन्हां नूं छका दिंदे हां। साधु ने छक लैणगे, साधु छक लैंदे। मन च सोचिया इसी तरह कीता उन्हें, कुछ बूटे छोले नरम कीते, दिते सेक अग दे नाल ते वधिया करके साफ ते सतगुरां दे कोले अगे रखे। जदों रख दिते, अमृत भरी दृष्टि पाई, गुरु नानक पातशाह ने इशारा करया, मर्दाने ने कीर्तन की समाप्ति करी। सतगुरु वचन कर लगे भी ये किस दे ने, क्यों लियांदे, तेनू किसने कहा है? वो कहन लगा जी कहा तो किसी ने भी नहीं, पर मेरे मन में फौरना बनया भी छकण वास्ते होर कुछ है नहीं सी, घरे वापस बहुत दूर है। गुरु जी वचन कर लगे फिर क्यों रखे, ये तेरा खेत है? कहन लगा जी हाँ जी, पहला मेरा पिता सी दिने उसका समा सी, रखवाला रखिया करता सी, दिने खेत विच गेड़ा मार रहा सा। शाम का हुण मेरा टाइम है, मैं पहरा रखना है, खेत विच रखिया करने वास्ते आया, रात का मेरा टाइम है। सतगुरु वचन कर लगे भी ठीक है, फिर ये क्यों? कहन लगा जी होर छकण वास्ते है नहीं सी, फिर कुछ भी मन विच फौरना बनया तो तुसीं ये छक लो। हुण सतगुरु फिर वचन कर लगे भी असीं आए नहीं छकदे, असीं भी कोई तेरी पहला मंग है ना, पहला तू कुछ मंग लै। गुरु नानक पातशाह सतगुरु जगत दे मालक देखो, पहला तू कुछ मंग ला, कोई फौरना है तो मंग ला। सतगुरां ने वचन करिया, वो भी बैठा कोले, वो वेख रहा, मन च सोच रहा भी मैनू साधु पुरुष कहते ने भी कुछ मंग ला, भी मैं ना कोलों की मंगना है, ये तो आप आन के इत्थे बैठे ने खेत विच साडे। देखो जीव नूं पछाण, गुरु पूरा साधु महापुरख छेती आपकी पछाण नहीं आउण दिंदा। हो देखो पछाण नहीं छेती आउण दिंदा। देखो हुण जगत के मालिक बैठे ने, हुण वो सोच रहा
ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆ ਦੂਸਰਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੂਸਰਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਦਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀਵ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੰਗ ਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੋਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਜੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੰਗ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਸ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਝਾੜਦਾ ਝਾੜਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋਗਾ, ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਜੋਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਵੇਖੋ ਪਛਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ,
ਤੇ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਗਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਸ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋਗਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦੀ, ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 2 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ। ਉਸਨੇ ਖੋਲੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾ, ਬਸ ਬਚਨ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਕੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, 2 ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਸਾ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੋਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਹਉਮੈ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵਿਆਹ, ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਪਈ, ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖੜਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਚ ਵੇਖ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਪਈ। ਵੇਖੋ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ,
उदों ही फिर बचन करया, वो सिखा तेरे सोहना दाड़ा है, सोहनी पग बनी, लगता तू गुरु का सिख है। इधर तां उपर तां पाप आ, पाप ने इधर नेड़े, तू गुरु का सिख लगदा, गुरु का सिख जापदा तू, ते तू इधर पाप कमाउण किधर तुर पिया तू। जो इन्नी गल कही ना, उस टाइम जिहड़ी हौमै सी ना, हौमै सब दूर हो गई। बहुत शर्म आई, उसमें महसूस होया अपने आप को। उस टाइम सीधे रास्ते से फिर तुर पिया, अपने आप को बड़ी शर्म दिंदा जांदा तुरिया। ओहो, ये बहुत माड़ा काम हो गया, बहुत माड़ा काम हो चलिया। मैं गुरु अगे की मूँह दिखाऊंगा, मैं किहड़ा सिख हाँ। पहला कहता सी मेरे वर्गा सिख ही नहीं, हुण सोचदा भी मेरे वर्गा वड्डा पापी कोई है नहीं, भी सब कुछ छड्ड आया सी ते तुर किधर नूं पिया सी, बेसवा वालों वेखो किधर नूं तुर पिया। मन दे विच ऐसे फौरने बनाउंदा। जदों फिर आनंदपुर साहिब पहुंचिया, सतगुरां दे चरनां 'च मत्था टेकिया ते रोण लग्या। सतगुरु बचन कर लगे, हाँ जोगिया तू आ गया। कह लगे नहीं सतगुरु, मैं आने वाला नहीं सी, मैं नहीं से इत्थे पहुंचने वाला, मैं तो सतगुरु पापी हाँ। गुरु जी मुस्कुराउंदे बचन कहन लगे, जोगिया तू तो सोचदा सी मेरे वर्गा कोई सिख ही नहीं। कह लगे नहीं सतगुरु, नहीं नहीं, मेरे वर्गे तो बथेरे सतगुरु बथेरे सिख ने, पर गुरु मैनू तेरे वर्गा कोई गुरु जहान ते नहीं मिलना, तेरे वर्गा नहीं मैनू कोई गुरु मिलना। सतगुरु तुसीं ही मैनू उत्थे रोकिया, तुसीं ही पहरा दे के मैनू आवाज़ दे के सतगुरु मैनू रोकिया, मैं तो पापी हाँ, पापी हाँ। गुरु जी ने फिर घुट के उस टाइम कंठ दे नाल लाया। गुरु जी बचन कर लगे, जोगिया तेरे नाल साडा बचन सी होया वा, बचन होया वा सी तेरे नाल। किस जोगा? तू क्या सी गुरु जी मैं तुहाडे जोगा। ते जोगिया फिर असीं भी बचन करिया सी भी जे तू साडे जोगा ते असीं भी तेरे जोगे। जोगिया सानू उत्थे जाके पैज रखनी पई तेरी पहरा दे के। गुरु की नहीं कर सकदा सिख वास्ते, की नहीं कर सकदा सिख वास्ते, सब कुछ गुरु करन बैठा है, पर असीं भी सिख नहीं बनते। असीं जिन्ना चਿਰ सिख नहीं ना बनते, सिख नहीं पूरे बनते, उन्ना चਿਰ फिर गुरु नूं भी नहीं कोई विश्वास आउंदा, उन्ना चਿਰ फिर कोई काम भी नहीं लोट आउंदा। देखो जानी मंग मंगी है, ये मंग मंगनी चाहिए अपन गुरु कोलों कि गुरु किरपा करो सानू अपने जोगे बना लो, किरपा करो। ये मंग है, देखो जिन्हां ने मंग मंगी तो तर गए। हुण उधर वेखो गुरु नानक पातशाह सतगुरु जगत के मालिक बैठे दीन दुनिया के बानी, सतगुरु बचन करते ने, मन च सोचदा हो कि मैं की मंग मंगा। अंतर जाके सतगुरु पातशाह जान गए। सतगुरु बचन कर लगे, ठीक है जे नहीं कुछ मनना ना, पर तू साडा फिर एक वचन मान लै। गुरु नानक पातशाह ने कहा तू एक वचन मान ला। कह लगे जी दसो। सतगुरु बचन कर लगे, जिन्ना टाइम बैठ के इत्थे हुण कीर्तन होवेगा ना, उन्ना टाइम तू इत्थे साडे कोले तू बैठा रही, बैठा रही। हुण मन च सोचिया कि आपां पहरा भी देना, खेत विच रखिया करनी, इन्ना टाइम भी निकलना है रात सारी, भी चलो अगे गेड़े कढ़दे हैं, भी अज इत्थे बैठ जावांगे आपां, भी साधु किन्ना क टाइम बैठणगे, किते थके हुए ने, थोड़ा क टाइम है बस सौ जाणगे, सौ जाणगे। मन च सोचिया, कह लगा जी ठीक है, जे मैं इत्थे तुहाडे कोल बैठा रहा तुसीं फिर ये छकोगे। सतगुरु ने इशारा करे भी हाँ। गुरु जी ने भोग लाया, मरदाना जी ने छकिया, भाई बाला जी ने भी छकिया। शाम सूरज उस टाइम छकिया, सूरज छक गया। उस टाइम फिर कीर्तन शुरू हो गया, कीर्तन शुरू होया ते उधर हुण शहर दे विच रौला पिया, विचारा होंदियां भी किस नूं बनाईए, राजा कौन बने, किस नूं बनाईए। विचारा करते करते जिहड़े कुछ सियाणे मंत्री सन, पुराने वजीर
उन्होंने पुछया, विचारा करियां बैठ के। उन्होंने फिर एक गल कही, निर्णय किया, कहने लगे भी कोई निर्णय तो निकलता नहीं होना, कोई हो नहीं रहा निर्णय भी। शहर विचों लोग उठ के भी जा रहे हैं भी, इन्ने दिन किन्ने के निकलणगे होर भी, औखा है। कहने लगे फिर की करिए? कहने लगे भी सारे दरवाजे बंद कर दो शहर के, सारे दरवाजे, शहर के 4-5 दरवाजे सब बंद कर दो, चढ़ती वाले पासे रखो, जिहड़ा आऊगा ना कोई भी होया आपां उसनूं राजा मनांगे। ये गल हो गई। हुण लोग तो दूसरे भी बड़े काहली सन, बड़े उतावले हुए भी सन भी छेती तो छेती कोई ना कोई राजा बने, चाहे जो भी मर्जी होवे, सानू कहने लगे मंजूर है, मंजूर है। कहने लगे ठीक है। चढ़ती वाले पासे सारे खड़ गए लोग देखण वास्ते भी किहड़ा राजा आउंदा, किहड़ा बनदा है। फल फड़े वे, हार फड़े वे गल पाउण वास्ते, किहड़ा राजा आवेगा। देखो खड़ के सब लोग, सारे गेट बंद कर दिते, चढ़ती वाले पासों खड़ गए। ते हुण इधरले पासे जदों कीर्तन होया ना, गुरु नानक पातशाह 12:15 बज के देखो बैठिया, 7 बजे जे बैठे भी देखो, सतगुरु गुरु नानक पातशाह 7 बजे जे बैठे ते 12:15 तो उत्ते समा लंघ गया। देखो 5-6 घंटे बैठे रहे सतगुरु, वो भी बैठा रहा, हाजरी भरी। जो 12:15 तो उत्ते समा होया ना, सतगुरु बचन कहन लगे भी समाप्ति हुई मर्दानी भी, असीं हुण इशनान करके निजी स्वरूप च होना भी, तू घरे जाना है, जा सकदा है, जा वड़ा। सतगुरां ने बचन करिया ते जिन्हों उठ के जान लग्या ना, सतगुरु फिर बचन कर लगे भी इन्ना टाइम 5 घड़ियां साडे कोल बैठ के तू सवास सफले करे ने, कीर्तन सुनिया, इन्ना टाइम बैठ के, ਇਹਦਾ फल तेन बहुत बड़ा फल मिलेगा। फल तेन इतना बड़ा फल मिल जाएगा कि तू कदे सोचिया भी नहीं होना भी ऐसा तेन फल मिलेगा। सतगुरां ने बचन करिया, वो मन विच सोचदा भी ऐसा किहड़ा कोई फल मिल जाएगा। अगे भी बथेरे जाते हाँ, आउंदे हाँ, बथेरे बहुत कहते ने किहड़ा फल मिल जाएगा, जदों होया उदों फिर वेखांगे, लग जू पता। मन सोचदा, उठ के जो तुरिया मत्था टेक के सतगुरां जदों जा रहा ते गया, फिर देखा भी अज गेट बंद है, भी कोई भी नहीं है पहले ते बाहर। गया हजे गेट खोलिया, बड़ा बहुत बड़ा गेट है। गेट खोल के ते एक पैर हजे अंदर ही रखिया, दूसरा पैर अंदर रखिया। उस टाइम फुल्लां दी वर्खा होई, पहला फुल्लां दी वर्खा। भज के आन के फिर लोग गल विच हार पाउंदे ने, हार पाउंदे ने। इकट्ठ भी बहुत है, शहर बड़ा है, लोग उतावले हुए भी सन, किहड़ा राजा बने। गल विच हार पाउंदे ने, फुल बरसाउंदे ने। बड़ा हैरान आप, बड़ा हैरान। वो कहंदा भी, नाले पुछदा नाले रोकदा भी, गल दसो की है, फुल क्यों, हार क्यों पाउंदे गल विच। हुण कोई नहीं सुनदा, इन्ना इकट्ठ है, किसी ने नहीं कुछ सुनिया, उन्होंने आप नूं नहीं पता लग्या। बड़ी छेती नाल लै गए उसनूं, छेती नाल लै गए, लिजा के इशनान करा के ते कुर्सी ते बिठा के उसनूं राज तिलक दे दिता, राजा बना दिता उसनूं। इन्ने टाइम समय पल दे विच बड़ा हैरान। वो कहने लगा, मैनूं पहलां दसो तां सही की गल है। वजीर आया कोले, उन्हें आण के फिर दसिया, कहन लगे भी इस टाइम तुसीं साडे राजे हो। वो कहन लगा भी वो किवें? कहन लगे भी रात निर्णय होया सी जिहड़ा चढ़ती वाले पासों आऊगा भी असीं उसनूं राजा मनना है। सानूं कोई नहीं पता सी बाहर कौन गया या कौन नहीं गया, सानूं कुछ नहीं सी पता। वो बड़ा हैरान। वो कहन लगा हजे कुछ पल मैं गरीब किसान का पुत्र सी, कुछ पल ते पल दे विच ही मैं राजा किवें बन गया।
राजा मैं किवें बन गया? पल दे विच ही किवें बन गया राजा? देखो कैसा पल है सत संगत दा। देखो बैठा हाजरी भरी सवास सपने करे सतगुरां दे वचन दे नाल बैठा रहा। देखो की नहीं वो गुरु कर सकदा? पल दे विच सब कुछ वो गुरु बदल सकदा। कीड़े नूं पातशाही बख्श सकदा और मालिक। देखो राजे नूं पल दे विच ही भखारी बना सकदा वो ऐसा गुरु समर्थ है। देखो समर्थ है ताही सतगुरां ने वचन करिया जिहड़ा कलयुग दे विच गुरु जी ने वचन करिया ना भी सुख जीव नूं किवें मिलेगा? कीर्तन दे नाल कथा दे नाल सुख मिलेगा जीव नूं जे सुनेगा। एक होर कलयुग दे विच वचन है कानून है गुरु ने बनाया सतगुरां ने कि पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुख दा। असीं दुखने चीज़ां तो भी दूर चले गए, असीं कीर्तन तो भी दूर चले गए। असीं बैठण नूं जी नहीं करदा, मन नहीं करदा साडा, ना ही कथा विचारा सुणन नूं मन करदा ते ना ही फिर सानूं सुख मिलदा ते ना ही साडा कोई काम लोट हुंदा। वेखो पर गुरु जी ने दो वचन करे ने कल घोर कलयुग दे विच सुख देण दे रस्ते ने सतगुरां ने दित्ते। वेखिआ कथा कीर्तन दे नाल पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुख दाई। देखो गुरु जी ने वचन करे। देखो सुख मिलिया की होया? राजा बन गया। राजा बन गया जो बैठा ना कुर्सी ते मत्थे ते हाथ रख के सोचदा भी किवें होया। सोचदा फिर ध्यान गुरु नानक पातशाह दे विच उत्थे फिर ध्यान गया मुड़ के। फिर याद आया भी हाँ भी वो साधु पुरुषां ने मैनूं वचन करिया सी भी तू इन्ना टाइम साडे कोल घड़ियां पल सवास सपने करे ने भी एदा फल तैनूं इतना बड़ा फल मिलेगा भी जिहड़ा तू कदे सोचिया भी नहीं होना। सोचिया भी नहीं होना तैनूं ऐसा फल मिल जाएगा। कहन लगा भी ठीक है भी वो पूरे ने कोई साधु महापुरुष दिन चढ़िया बड़ी छेती दे नाल पहला गुरु नानक पातशाह कोले गया परजा नूं नाल लैके। जदों लैके गया जांदियां सारे ने सतगुरां दे पहला चरण पकड़ ले। कहन लग्या पहला मैनूं आए दसो तुसीं कौन हो, कित्थों आए हो? मरदाना भी बड़ा हैरान, मरदाना वेखदा कहन लग्या भी कौन है? वो कहन लग्या मैं इत्थों तां गया सवेरे तुहाडे कोलों। मरदाना कहन लग्या अच्छा भी वो जिहड़ा इत्थे बैठा सी हाजरी भरदा सी? कहन लग्या हाँ। मरदाने ने वेख्या कि पहला कपड़े तां बड़े मैले जे पाए भी सी, ये हुण राजियां वाले कपड़े पाई फिरदा। वो कहन लगा भी इस गुरु इस साधु महापुरख दे वचनां दे नाल मैनूं जांदियां मैनूं राज मिल गया। जांदे जांदे मैं राजा बन गया। मैं पूछना चाहता भी कौन साधु ने? फिर मरदाना जी ने दस्या भी ये जगत दे मालक गुरु नानक पातशाह दुनिया नूं तारन वास्ते आए हैं, तारदे ने गुरु तारन वास्ते आया। फिर बेनती करी सतगुरु कृपा करो फिर चलो चरण पाओ, जिहड़ा तुसीं राज बख्शिया महल बख्शे ने जिहड़े सतगुरु चलो उत्थे चरण पाओ, हुण नाल चलो। गुरु नानक पातशाह वचन कह लगे नहीं साडे परन ने, असीं एक शहर विच नहीं जाना, किसी दी छेती घर विच भी नहीं जाना। वचन ने साडे परन भी जो तू सेवा करनी मन दा फुरना भावना तू इत्थे लिया, इत्थे सेवा करना। उत्थे फिर जल पानी भोजन सतगुरां नूं छकाया। इतिहास दे विच जिक्र वचन आउंदे ने कि करीबन सतगुर उत्थे 15-16 दिन उत्थे रहे सतगुरु गुरु नानक पातशाह। होर भी शहरों होर आसे पासे इलाके दे विचों संग दर्शन करने वास्ते संगत आईयां सतगुरां दे, जिहड़े दुखी सन बीमार सन, दुख नहीं सी टुटदा, बहुत आराम आया उत्थे। फिर सतगुरां दे कोले उन्हें भी सेवा बहुत करी। सतगुरां ने फिर वचन करिया भी असीं हुण जाना है, अगे दुनिया नूं तारन वास्ते जाना है।
वो कहन लग्या मैं भी तुहाडे नाल ही जाना। सतगुरु कहन लगे नहीं, तेनू हुण राज बख्शिया इत्थे, तू ये राज भी कर ते प्रजा नूं भी सुख दे। हुण सतगुरां ने बचन करिया, कहन लगा जी फिर हुण मैं तुहाडे दर्शनां तो बगैर नहीं रह सकदा, किरपा करो। सतगुरु बचन कर लगे भी आस जगह ते बैठे आ ना, तो इत्थे धर्मशाला बना ला, एक कमरा पा ला, धर्मशाला बना दे, आसन ला दे, आसन ला दे। इत्थे जदों भी तेरे मन विच फुरना होवेगा ना, कोई काम कार है नहीं बनदा, मन विच चाहत है दर्शनां दी, कोई बेनती करनी है, सतगुरां ने बचन करा कि उस टाइम तू इत्थे कड़ा प्रसाद करके लिया के तू आसन ते रखी, अरदास बेनती करन विच तेरी देर होवेगी, पर साडे दर्शन विच देण विच कोई देर नहीं होवेगी। गुरु नानक पातशाह ने उदों बचन करे, देखो बचन करे, उस टाइम दे बचन करे दे ते बचन हुण भी पूरे हो रहे ने। देखो हुण भी पूरे होंदे ने, 10 पातशाहियां सतगुरु सब ने बचन करे, हुण भी वेखो साधु महापुरख बाबा नानक सिंह जी ने बचन वो पूरे होंदे ने। वेखो बचन हुण आ स्थान इत्थे टिब्बा सी, इत्थे की सीगा, कुछ भी नहीं सी इत्थे। देखो कुछ नहीं सी, जंगल की तरह सी इत्थे, बहुत भयानक, दिने ही डर लगदा सी इस जगह ते। देखो दिने जिहड़े पुराने आ ना बैठे इत्थे, कोई जिन्हां नूं पता है इधर नूं नहीं सी कोई लंघदा ही नहीं सी, डरदा इत्थे। देखो ते गुरु नानक पातशाह सतगुरु जिहड़े बचन करे ना, जिथे आसन ला के कोई याद करेगा श्रद्धा भावना दे नाल, उत्थे फिर गुरु नानक दी शक्ति वरतदी है, उत्थे फिर गुरु नानक वरतदा है, उत्थे प्रतख वरतदा, उत्थे गुरु नानक वरतदा। इत्थे देखो किरपा वरतदी है, अखंड पाठ लड़ियां चलदियां ने, कोई भी आउंदा श्रद्धा भावना दे नाल। किसी नूं कोई याद सी भी इत्थे इन्ना सुंदर स्थान बनेगा, सरोवर बनेगा इत्थे, किसी नूं कुछ नहीं सी पता। वेखो किरपा वरतदी है ना गुरु नानक पातशाह। ते कई ऐसे उठे ने जी नहीं गुरु नानक तां चलिया गया, उहदा कोई सिख नहीं सी, सिख दा थोड़ी प्रचार किया गुरु जी ने। कई ऐसे भी बोलते ने, देखो वो सब मायाधारी ने, ऐसे लोग मायाधारी, माया मिलती है सरकार वालों, सरकारी जंट छड्डे वे ने, वो बाणे दूसरे पाए हुए ने, बस कोई इन्हां दा सुनिया ना करो, ना इन्हां दे पिछे लग्यो। बस जागदी जोत गुरु नानक पातशाह प्रगट गुरां की दे सतगुरु बैठे ने, हुण भी बैठे ने। गुरु हुण भी तार रहा, हुण भी तार रहा, गुरु हुण भी दातां वंड रहा। देखो दातां वंड रहा। इत्थे देखो कितना समा हो गया स्थान बने नूं, बहुत समा हो गया, करीबन 30-35 साल के करीबन ही हो गया वो समा। ते जेड़े इत्थे प्रशादा लियाउंदे ने, करीबन 25-26 साल हो गए ने प्रशादा लियाउंदे ने, जिन्हां नूं कदे याद भी नहीं सी, जिन्हां दे घरे किते साइकल भी नहीं सी हुंदा, याद नहीं सी भी असीं इत्थों ते इत्थे पहुंच जावांगे, भी किते साडी बैंकां विच माया जमा हो सकदी है, याद नहीं सी कईयां दे। ते जिन्हां नूं इत्थे सेवा करदे नूं 25-26 साल हो गए, ते आ हुण सतगुरां ने किरपा कीती, वधिया जहाजां ते झूटे लैंदे ने। वो वेखो किरपा वरतदी है, हुण भी मेहर वरतदी है। कोई वेखे सेवा करके, कोई वेखे वेखो भावना दे नाल। सो इस करके कर्मां नाल आपां समा मिलिया है, समा मिलिया। संगत बहुत आउंदी है बाबा जी कोल, भुगतदी है, बहुत दूरों दूरों आउंदे ने संगत, बहुत दुखी हुंदी है, बहुत डॉक्टरां वल्लों जवाब ही नहीं हुंदा, जवाब हुंदा। अज भी एक गुरमुख प्यारे भुगत रहे सन बाबा जी दे कोले, दर्द से उसदे हुंदा, बहुत औखा सी, तकलीफ सी उसनूं। ते बाबा जी ने पुछया भी हुण वेख, कहन लगा कि अगे नाल तो फर्क है, उठ के हजे तुर नहीं लग्या। बाबा जी ने फिर पुछया भी तेरे पिता किन्ने भरा सन? वो कहन लगे जी 3 भरा सन। बाबा जी कोई बचन कर लगे भी जिहड़ा रज के जे मरिया बीमार हो गए वो कौन सी? वो कहन लगे जी मेरे वो
मेरे प्यो का जानी बड़ा भरा सी, जानी मेरा ताया वो सीगा। बाबा जी बचन कर लगे भी ये औलाद आ। कहन लगे जी हाँ जी कलियां कुड़ियां ही सी, 3 कुड़ियां सी, 3 कुड़ियां सी। बाबा जी बचन कर लगे जमीन वो कहन लगे जी वो साढ़े हिस्से आई भी है, असी बौंदे हाँ, असी बौंदे हाँ, वो असी बौंदे हाँ। बाबा जी कहन लगे भी हुण वेख दर्द, कहन लगे जी अगे नालों बहुत फर्क आ, हुण ठीक आ, हुण अगे नालों बहुत फर्क है, सौखा साह आया वा, हौला हो गया शरीर मेरा अगे नालों। बाबा जी ने फिर दस्सिया भी घर है बहुत भीड़ी बेही जी, जाके ना अगे मुड़ के तेनों घर है। कहन लगा हाँ जी बाबा जी साडा दूसरा तरह घर से, उसका इधरला घर से। बाबा जी कहन लगे भी नेर जा पैंदा बहुत, कहन लगे जी हाँ जी वो इसे तरह ही सी, इसे तरह ही मरिया, बहुत बोलता सी। बाबा जी बचन कर लगे तेरे नाल बनदी सी कि नहीं? वो नीवी पा के हस के कहन लगा जी नहीं साडे नाल नहीं सी ओहदी बनदी। बाबा जी बचन कर लगे ताइयों तुहानूं तंग करदा, तंग करदा ताइयों अड़बजा सी वो बहुत। कहने लगे हाँ बाबा जी इस तरह ही सी, सुभाव दा बड़ा अड़ब सी। देखो कहन लगे जी मर गया, आपां सोचते हैं विचार करते हैं जी भोग भी पै गया, वो फुल भी पाए आंदे उत्थे फलानी जगह कर आंदा। तो देखो मरिया बंदा भी हजे आपकी जमीन हजे पैली नहीं छड्ड रहा, देखो छड्ड नहीं रहा, देखो हजे भी नहीं छड्ड रहा। इस करके ताही साधु महापुरखों नूं आउणा पिया धरती ते, हे जीव तू गुरु वाला तां बण, तू गुरु दे लड़ ना लग, गुरु दे लड़ लग, तू सिमरन कर, नाम जपदा जपदा तू कोई समा तो सब दा आउंदा ही है, पर जे तू नाम जपदा जपदा शरीर छड्डे तां फिर क्यों नहीं तू दरगाह विच जा सकदा। गुरु रखिया करता है पैज सवारदा। सो इस करके फिर बाबा जी ने भैन सिंघां नूं दासां नूं बचन करिया भी तुसीं जाओ, फिर आ समा मिलिया सुभागा हाजरी भरन दा, दर्शन करन दा संगतां दे। दीवान होर भी ने, आपां सब ने वध चढ़ के हाजरी भरनी है। इलाहा जिंदगी दा बस काम कार सब चलते ने, इधर चलते रहने ने। काम कार नूं किसी ने खत्म नहीं कीता, किते काम नूं किसी ने खत्म नहीं कीता, बल्कि काम करने वाले खत्म हो रहे हैं। देखो इस करके हुण लाहा जिंदगी का जिहड़े सत्संग दीवान चलते हैं, आपां वध तो वध हाजरी भरीए आइए बैठिए, जो वचन इतिहास आपां सब सरवण करिए। कर्मां नाल समा मिलिया है, सो आओ सारे ही आपां रसना नूं करिए पवित्र, कोई भी वांझा ना रह जाए। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। मन तन लाए प्यार।
हरजस गायो संत जना मिले हरजस गायो संत जना हरजस गायो संत जना मिले। आसा महला चौथा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद तू करता सचियार मैं दासाई जो तो पावै सोई थी जो तू दे सोई हम पाए रहा सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मानव गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाए जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जैसनो तू जाना आहे सोई जन जान हर गुण सदहि आख कमाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सा